Yes, students, in today's class, I am going to begin chapter 3. The name of chapter is Fiber to Fabric. Clear? How fiber to fabric make. फाइबर से फैब्रिक कैसे बनता है हम इस चैप्टर में अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे. क्लियर है? First, we understand clothes are one of the basic need of life. Clear? We have already read yesterday class that fabrics are made from yarn and yarn from fibers. Fabrics जो हैं किससे बने होते हैं? yarn से. और yarn किससे बना होता है? fabric से. I think clear? ओके तो हमने कहा क्लोथ्स जो है वो हमारी लाइफ में बेसिक नीड के अंदर आते हैं, जैसे बोलते हैं रोटी कपड़ा और मकान, है ना. तो बेसिक नीड में आते हैं और हमने यस्टरडे क्लास में रीड कर लिया कि फैब्रिक जो है वो किससे बना होता है? yarn से. और yarn मेकर फ्रॉम फाइबर्स. क्लियर? प्रोसीड. बिफोर we understood where does fiber come from and how many types of it. Clear? There are fibers comes from plant. We already read, we revise it. Fibers comes from plant and animals. Are natural fiber, animals and plants. Clear? When we get fiber from animal and plant, what we call natural fiber. Clear? And when we get from fiber या make from fibers from chemicals, हम जब fibers को chemicals के through make करते हैं तो वो what we call, this is type of synthetic fiber. तो fibers are two type, natural fiber and synthetic fiber. I think clear? synthetic fiber किससे बना होता है? chemical से. synthetic fiber किससे बना होता है? chemical से. clear? synthetic are made of chemicals. clear? in factories. clear? Next, natural fiber. Natural fiber also are two type of fiber, plant fiber and animal fiber. Plant fiber are cotton, jute we get from plant. They are called a plant fiber. Clear? And which fiber we get from animal? They are called a animal fiber. For example, wool. Wool. Where we get wool? हमें wool कहाँ से मिलती है? Wool मिलती है from sheep. किससे मिलती है? sheep से. And second one is silk. Where we get from silk? Silk get from silkworm. I think it is clear. Okay. Next, there are two type of fiber, natural fiber and synthetic fiber. And one question is difference between, when question arises, difference between natural fiber and synthetic fiber, या क्या qualities होती हैं दोनों में कि नेचुरल फाइबर क्या क्वालिटी है और सिंथेटिक फाइबर की क्या क्वालिटी है. फर्स्ट वी read about natural fiber characteristic. Natural fiber are strong. They are strong. They keep our body warm and cool. जो नेचुरल फाइबर होते हैं वो हमारी बॉडी को क्या करते हैं? वार्म रखते हैं, गर्म रखते हैं. जैसे शीप की वूल है उससे हम वूलन क्लोथ्स बनाते हैं और वो हमें क्या रखती है? वार्म रखती है. क्लियर है? इन समर sweat can pass through the cotton clothes. और cotton clothes में मैंने कल आपको बताया था बीच में पोरस या होल्स प्रेजेंट होते हैं जिनके थ्रू एयर क्या हो जाती है? पास हो जाती है. तो द समर sweat can pass through the cotton cloth, thus the more suitable for summer. इसीलिए हम ज्यादातर क्या करते हैं? suitable जो comfortable clothes जो हम समर में wear करते हैं वो कौन से होते हैं? cotton clothes होते हैं. क्लियर है? synthetic fiber में what quality have a synthetic fibers? They are strong. They are strong. They are crease resistant. Crease means wrinkle free. Crease means क्या हो गया? wrinkle free. They are easy to wash. ये बहुत easily क्या हो जाते हैं? wash हो जाते हैं. Clear? They dry up quickly. Synthetic fiber जो होते हैं बहुत ही ज्यादा जल्दी dry हो जाते हैं. ठीक है? They are dry up easily. I think it is clear. In yesterday class, we learned what is fiber, what is yarn, what is natural fiber, what is synthetic fiber. Next point था हमारे पास में. Next point come is cotton plant. This diagram is cotton plant, cotton field. Okay. ये look कैसा look देता है? जैसे कि यहाँ पर क्या हुआ है?
स्नोफॉल हुआ है ना। तो लुक कॉटन जो है हमें कहाँ से मिलता है, कॉटन प्लांट से। कॉटन प्लांट का जो फील्ड है इसमें देख रहा है कॉटन है का प्लांट है, कॉटन के प्लांट का दिस इज अ फ्रूट। वी गेट कॉटन फ्रॉम कॉटन प्लांट एंड कॉटन प्लांट का भी कौन सा पार्ट, विच पार्ट, कॉटन का प्लांट लेते हैं। कौन से प्लांट से हम कॉटन को लेते हैं, वी गेट फ्रॉम कॉटन फ्रूट, कॉटन फ्रूट। क्लियर है। अब कॉटन फ्रूट है तो उसके इनसाइड में क्या प्रेजेंट होगा, सीड प्रेजेंट होगा। जब हम कॉम्बिंग के थ्रू इस कॉटन फ्रूट में से सीड्स को क्या करेंगे, सेपरेट आउट करेंगे, किसके थ्रू, कॉम्ब के थ्रू। ठीक है ना। हमने क्या किया, कॉम्ब को यूज किया, कॉम्ब के साथ में उस कॉटन फ्रूट को हम कॉम्ब करेंगे तो उसमें से सीड्स क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। इस प्रोसेस को हमने क्या बोला था, गिनिंग। क्लियर। जब हम कॉटन फ्रूट के अंदर से गिनिंग प्रोसेस में क्या करेंगे, सीड को इस फाइबर में से, जो कॉटन का फाइबर हमें मिला उसमें कॉम्बिंग प्रोसेस के थ्रू सीड्स को क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे। तो दिस प्रोसेस व्हाट वी कॉल गिनिंग। गिनिंग बाय हैंड भी होता है और गिनिंग बाय मशीन्स भी होता है। क्लियर। नेक्स्ट फाइबर इज जूट. Jute fiber we obtain from stem of jute plant. Where we, plant का कौन सा part, which part we use, we take a jute fiber, the plant part is stem. Clear. और कॉटन में हम कौन सा पार्ट यूज कर रहे थे, कॉटन में हम पार्ट यूज कर रहे थे उसका फ्रूट। क्लियर है। इसमें यूज कर रहे हैं हम उसका स्टेम। क्लियर है। हम इसको कौन से सीजन में कल्टीवेट करते हैं, विच सीजन में कल्टीवेटेड, जूट एंड रेनी सीजन, एंड रेनी सीजन। इंडिया, इन इंडिया में कौन से स्टेट में जो जूट है उसको क्या किया जाता है, ग्रोन किया जाता है, दे आर वेस्ट बंगाल, बिहार एंड आसाम। क्लियर। द जूट प्लांट इज नॉर्मली हार्वेस्टेड, हार्वेस्टेड का मतलब कटिंग ऑफ ट्री, या ठीक है, हार्वेस्ट का मतलब यहाँ पे क्या आ रहा है, कटिंग करना, है ना। तो हम इस नॉर्मली जूट प्लांट को क्या करते हैं, यहाँ से कट करते हैं। कौन सी स्टेज में, फ्लावरिंग स्टेज में। द स्टेम ऑफ the stem of the harvested plant immersed in water for a few days. जो स्टेम है वो जूट का, उसको हम क्या करते हैं, वाटर के अंदर कुछ डेज के लिए क्या कर देते हैं, इमर्स्ड कर देते हैं। इमर्स्ड का मतलब डिप करके रखते हैं वाटर के अंदर। The stem rot, stem क्या होता है, rot होता है, and fibers are separated by hands. जब stem पूरी तरीके से rot हो जाता है तो उसको fibers को हम by hand क्या करते हैं, separate करते हैं, और उससे फिर क्या बनता है, फाइबर बनता है। All these fiber first converted into yarn. ये जो भी फाइबर है, कॉटन का फाइबर है या yarn का फाइबर है, क्लियर है, फर्स्ट वी कन्वर्टेड इनटू अ yarn। क्लियर। तो फाइबर से yarn बनने का जो प्रोसीजर है व्हाट वी कॉल स्पंजिंग, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड स्पिनिंग, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड स्पिनिंग। अब स्पिनिंग कैसे की जाती है, व्हाट इज द मेथड ऑफ स्पिनिंग। फर्स्ट हम क्या करेंगे, फर्स्ट वी होल्ड अ कॉटन वूल इन वन हैंड, पिंच सम कॉटन बिटवीन द थंब एंड फोरफिंगर। हमने क्या किया, पिंच किया, पकड़ के रखा, होल्ड किया, किसको, कॉटन के फाइबर को एक हाथ से। नाउ जेंटली पुलिंग आउट the cotton while continuously twisting the fiber. हम gently उस फाइबर को क्या करेंगे, पुल करेंगे और उसको continuously क्या करते रहेंगे, ट्विस्ट करते रहेंगे। तो what we see, what will we see? We see the fiber convert into a yarn. फाइबर किस में कन्वर्ट हो रहा है, yarn में कन्वर्ट हो रहा है। It's clear? The process making yarn from fiber, ये जो प्रोसेस है yarn से क्या बनने का, फाइबर बनने का, is called spinning. इसको हमने क्या बोला, spinning बोला। क्लियर है। इन दिस प्रोसेस फाइबर फ्रॉम अ मास ऑफ कॉटन वूल ड्रॉन आउट एंड ट्विस्टेड। इससे हम क्या करते हैं, धीरे धीरे फाइबर से, कॉटन वूल से उसको ड्रॉन और ट्विस्टेड करते रहते हैं और उसको कन्वर्ट कर देते हैं किसके अंदर, फाइबर को, yarn में। एक डिवाइस आती है जिसको हैंड से यूज करते हैं, दिस डिवाइस, व्हाट वी कॉल दिस डिवाइस, टकली। व्हाट वी कॉल दिस डिवाइस, टकली। क्लियर। Another hand operated device is used spinning. एक और डिवाइस है जिसको हम बाय हैंड यूज करते हैं, इज कॉल्ड अ चरखा। यूज चरखा वाज पॉपुलराइज्ड बाय महात्मा गांधी। महात्मा गांधी से हम चरखे को बहुत अच्छे से जानते हैं ना। एज अ पार्ट ऑफ इंडिपेंडेंस मूवमेंट एंड एनकरेज पीपल टू वियर, इंडिपेंडेंस वाले टाइम पे बहुत इंकरेज किया गया था कि हम क्या करें, कॉटन क्लोथ्स को यूज करें। क्लियर है। कौन से क्लोथ्स को, कॉटन क्लोथ्स को। तो सबसे पहले हमने क्या किया, हम कॉटन को की क्या ली, हमने कॉटन वूल ली। कॉटन वूल जो है, कॉटन वूल को हम वन हैंड और अपनी फोर फिंगर से क्या किया, हमने थोड़ा पिंच किया, पुल किया,
पुल करने के बाद में हम व्हाट वी सी, हमने देखा कि फाइबर कन्वर्ट हो गया किसके अंदर, yarn के अंदर। फाइबर कन्वर्ट हुआ किसमें, yarn में। जो ये प्रोसेस है मेकिंग yarn फ्रॉम फाइबर इज कॉल्ड अ स्पिनिंग, व्हाट वी कॉल स्पिनिंग। आई थिंक क्लियर। नेक्स्ट वन इज एक सिंपल डिवाइस, हमने कहा हैंडमेड डिवाइस है जिससे हम फाइबर को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, yarn के अंदर, व्हाट वी कॉल डकली। एंड एक अनदर डिवाइस व्हाट वी कॉल चरखा। तो महात्मा गांधी के थ्रू हम इंडिपेंडेंस मूवमेंट पे जानते हैं, महात्मा गांधी ने जो कॉटन क्लोथ्स हैं उनको हाथ चरखे की हेल्प से बनाकर जो ब्रिटेन की मिल्स में जो उस टाइम पे क्लोथ बनता था उनके इक्वल कॉटन क्लोथ्स को या खादी को खड़ा किया था। ठीक है, टू पॉपुलराइज एंड प्रमोट खादी, और उन्होंने पॉपुलराइज किया था और प्रमोट किया था किसको, खादी को। क्लियर है। नेक्स्ट है The body called a खादी एंड विलेज जो कमीशन 1956 में कमीशन बैठा था जिन्होंने खादी को बहुत ज्यादा प्रमोट किया था। गवर्नमेंट इस गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादा प्रमोट किया था किसको, खादी को। Spinning of yarn on a large scale is done with the help of a spinning machine. When we spinning process, यानी कि when we convert fiber to yarn in a large scale, we use some machines. Clear है। और when we use some machines. When we use some machines, clear है, machines के थ्रू हम उनको यूज करते हैं। आफ्टर स्पिनिंग मीन्स फाइबर कन्वर्ट हो गया किसमें, yarn में, है ना। yarn आर यूज टू मेकिंग फैब्रिक, और yarn को यूज कर लिया हमने क्या करने के लिए, फैब्रिक को मेक करने के लिए। आई थिंक क्लियर। yarn टू फैब्रिक। अब हम क्या कर रहे हैं, फर्स्ट स्पिनिंग में हमने क्या किया, फाइबर कन्वर्ट किसमें हो रहा है, yarn के अंदर, व्हाट वी कॉल दिस प्रोसेस स्पिनिंग। क्लियर। अब हम क्या कर रहे हैं, नाउ वी डू yarn कन्वर्ट इनटू अ फैब्रिक। yarn से हम क्या मेक करेंगे, फैब्रिक मेक करेंगे। देयर आर मैनी वेज बाय व्हिच फैब्रिक्स आर मेड फ्रॉम yarn। बहुत सारे मेथड हैं जिससे फैब्रिक बनाया जा सकता है, किससे, फ्रॉम yarn से। क्लियर। द टू मेन प्रोसेस आर वीविंग एंड knitting। टू मेन प्रोसेस आर वीविंग एंड knitting। इन एक्टिविटी 2, you might have noticed that a fabric is made up of two sets. इस एक्टिविटी अभी आया हमारे नेक्स्ट पेज पे है, उसमें हमने क्या किया, 2 सेट लिए किसके, पेपर के। क्लियर है। अब 2 सेट जो हमने ये पेपर के लिए हैं, लुक एट दिस डायग्राम हियर। फर्स्ट दिस वन एंड सेकंड इज दिस वन। क्लियर। हमने 2 पेपर ले लिए। इन पेपर की जो शेप और साइज क्या है, हम 2 शीट्स लिए हैं जो डिफरेंट शेप, डिफरेंट इनकी जो लेंथ और विड्थ होती है, हमने इसकी लेंथ और विड्थ दोनों कितने सेंटीमीटर लिए, 30 सेंटीमीटर, है ना। तो कट स्क्वायर पीस ऑफ लेंथ एंड विड्थ इक्वल टू 30 सेंटीमीटर ऑफ ईच शीट। हमने दोनों शीट को क्या किया, 30 सेंटीमीटर उसकी लेंथ एंड विड्थ को लिया है। ठीक है। नाउ फोल्ड बोथ द शीट। अब दोनों शीट को क्या किया हमने, फोल्ड किया है। आपको दिख रहा है, दिस वन ए शीट एंड दिस वन इज बी शीट, और बोथ शीट्स आर फोल्डेड। हमने दोनों शीट्स को क्या कर दिया, फोल्ड कर दिया। इट्स क्लियर। ओके। नाउ लुक एट दिस फर्स्ट ए शीट। ए शीट को हमने इस तरीके से फोल्ड करेंगे, ये जो मार्किंग की हुई है इस तरीके से फोल्ड किया, और इस मार्किंग से ही इसकी हमने क्या किया, लंबी लंबी स्ट्रिप्स को, लॉन्ग स्ट्रिप्स को क्या कर दिया, कट कर दिया। क्लियर। ए को हम कैसे, इस तरीके से, ऐसे, इस तरीके से, यहाँ से, फिर इस तरीके से, फिर इस तरीके से, इन लाइंस में इसको क्या किया हमने, कट कर लिया। आई थिंक ए शीट का क्या करना है हमें क्लियर हो गया है ना। सेकेंड शीट, जो हमारी सेकेंड शीट है, इस पे हमें लाइनिंग्स दिखाई दे रही है, ये ड्रॉ की हुई है लाइंस देखिए। हम सीजर की हेल्प से क्या करेंगे, इन लाइंस को इस तरीके से वर्टिकली क्या करेंगे, कट करेंगे। यहाँ से हम पूरा कट नहीं करेंगे पेपर, जैसे इसमें तो हमने कट किया हॉरिजॉन्टली, इसको हमने पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक कट कर रहे हैं। ठीक है। और इससे हमें हमारे पास में सेपरेट सेपरेट पीस मिल जाएंगे इस ऑरेंज शीट के। क्लियर। बट जो ये बी शीट है या ग्रीन शीट है, इसके अंदर हमें इसके कॉर्नर वाले पार्ट को कट नहीं करना है। ठीक है। इसके सिर्फ हम किस पार्ट को, ये जो लाइंस आपको शो हो रही है यहाँ पे, हमें जहां पर भी लाइन शो हो रही है उस पार्ट से को हमें सीजर की हेल्प से क्या करना है, कट करना है। आई थिंक ऑल आर अंडरस्टूड। क्लियर। When we cut
दो शीट, हम जब इसको कट कर लेंगे इन शीट्स को, तो हम इस शीट को ओपन किया, जैसा कि लुक एट दिस डायग्राम, सी ग्रीन शीट को हमने ओपन किया तो इस तरीके से ये दिखाई देगी, क्लियर। और ऑरेंज शीट को हम क्या करेंगे, नाउ फोल्ड बोथ द शीट इनटू हाफ, वन शीट ड्रॉन लाइंस एज शोन एंड कट बोथ द शीट एंड डॉटेड लाइन, जो भी डॉटेड लाइन इसके ऊपर है उससे हमने इनको क्या कर दिया, कट कर दिया और देन अनफोल्ड कर दिया, उसको अनफोल्ड कर दिया हमने ना। Weave the strip one by one through the cut into a sheet of paper as shown in figure 3.12c and show the pattern after weaving all the strips, for example D। अब हमने ऑरेंज स्ट्रिप को वन बाय वन इस ग्रीन शीट में क्या करना स्टार्ट किया है, वीव करना स्टार्ट कर दिया, क्लियर है। वन बाय वन फर्स्ट स्ट्रिप ली, उसको वीव किया, सेकेंडली उसको वीव किया, थर्ड फोर्थ, क्लियर। इन द लास्ट आफ्टर वीविंग दिस शीट, लुक एट दिस साइड, वो शीट हमें कैसे दिखेगी, इस तरीके की दिखेगी। यानी कि ये जो शीट्स के हमने पैटर्न लिए, ये क्या है, ये है यर्न, ओके, ऑरेंज यर्न एंड ग्रीन यर्न, ठीक है। जब हम इसको वीविंग प्रोसेस इस तरीके से करते हैं तो इस यर्न की हेल्प से हमने क्या बना दिया, इस तरीके से फैब्रिक बना दिया, क्लियर है। तो यही सेम प्रोसेस हमारा क्लोथ मटेरियल जब हम बनाते हैं तब होता है। और ये देखिए, ये एक वीविंग में हमें हमेशा टू यर्न यूज होंगे, वीविंग में कैसे यूज होंगे, टू यर्न्स यूज होंगे। देखिए इसमें एक हॉरिजॉन्टली पूरी लाइन ड्रॉ हुई हुई है एक यर्न की, सेकेंड यर्न को जैसे हमने ऑरेंज स्ट्रिप को वन बाय वन इस तरीके से स्ट्रिप किया था, वैसे ही हम यर्न्स को यानी धागों को, थ्रेड्स को इसी तरीके से वन बाय वन इनमें वीव करेंगे। जैसा पैटर्न हमें इस डायग्राम में दिखाई दिया था, वैसे ही पैटर्न से हमारे क्लोथ्स जो हैं वो वीव होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो क्या हुआ, इसमें कन्वर्ट हो गया, हमने फाइबर से क्या बनाया, यर्न बनाया, और यर्न से क्या बन गया, फैब्रिक बन गया, क्लियर। इसके अंदर हमें एक लेडी दिख रही है, लेडी किससे कर रही है वीविंग, बाय हैंड कर रही है इसमें। तो वीविंग प्रोसेस भी बाय हैंड भी होता है एंड आल्सो एज वेल एज दे आल्सो डू फ्रॉम मशीन्स, क्लियर। वीविंग ऑफ फैब्रिक इज डन ऑन लूम्स, ये जो एपरेटस यहाँ रखा है, जो इसको ये लेडी बैठी है अपने हाथों से करी, इसको क्या बोलते हैं, लूम्स। The looms are either hand operated, ऐसे looms जो होते हैं वो आपको हैंड ऑपरेटेड भी होते हैं और पावर ऑपरेटेड भी होते हैं। इनको हैंड के थ्रू भी किया जाता है और पावर यानी मशीन्स के थ्रू भी किया जाता है। आई थिंक क्लियर। आपके आसपास में कोई दरी बनाता होगा ना, आप उनके घर पे देखना, उनके घर पे आपको इस तरीके के लूम्स दिखाई देंगे। ये जो ब्लैक कलर के हैं, ये थ्रेड व्हाइट कलर के वहां पर होते हैं, और दूसरे जिस भी कलर की आपको जो भी फैब्रिक बनाना है उसको हम वन बाय वन यहाँ पर वीव करते रहते हैं, और फैब्रिक क्या होता है, धीरे धीरे बनता रहता है, क्लियर। नेक्स्ट वन इज निटिंग। नेक्स्ट क्या है, निटिंग। नीटिंग एंड वीविंग में देखिए एक सिंपल डिफरेंस क्या है, नीटिंग के अंदर हम ओनली वन फैब्रिक को यूज करते हैं, सॉरी वन यर्न को यूज करते हैं, और वीविंग के अंदर हम कितने, टू यर्न को वी आर यूज टू, हाउ मेनी यर्न्स, टू यर्न्स। और हमने देखा ना एग्जांपल में, जैसे ऑरेंज यर्न और ऑरेंज स्ट्रिप थी और एक ग्रीन स्ट्रिप थी, वैसे ही हम टू यर्न्स को यूज करके वीविंग कर सकते हैं। नीटिंग के अंदर हम आपने नोटिस किया होगा हाउ स्वेटर्स आर नीटेड, स्वेटर्स कैसे नीटेड होती है, मफलर्स कैसे नीटेड होते हैं ना। तो ये देखिए यहाँ पर इसमें वन यर्न है और उसको नीट करके यानी कि उस थ्रेड को क्या किया जाता है, नोट किया जाता है। हर थ्रेड को दो नीडल्स के थ्रू क्या किया जाता है, नीट किया जाता है। नीटिंग में क्या करते हैं, हम उस थ्रेड की छोटी छोटी नोट बनाते रहते हैं आपस में, और ये नीटिंग प्रोसेस पूरा कंप्लीट हो जाता है। Used to make a piece of fabric, have you ever pulled the yarn from a torn pair of socks? आपने कभी भी सॉक्स के अंदर कभी भी एक धागा निकल जाता है तो आपने कभी उसको देखा है, एक धागा निकल जाता है, हम उस धागे को पुल करते रहे, कंटिन्यूअसली पुल करते रहे, तो धागा आगे बढ़ता 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 पूरा जो फैब्रिक है वो सिर्फ और सिर्फ एक थ्रेड का ही बना होता है। आप देखेंगे लास्ट में वो थ्रेड पूरा फैब्रिक खत्म हो जाता है और एक ही थ्रेड से पूरा क्लोथ बना हुआ होता है। तो ऐसे इस चीज को हम क्या बोलते हैं, निटिंग बोलते हैं, क्लियर है। The socks make any other clothing item are made of knitting fabric. Knitting is done by hand. Knitting जो होती है वो भी हाथों से भी होती है एंड मशीन से भी होती है। मेन नीटिंग एंड वीविंग में डिफरेंस क्या है, दिस प्रोसेस इज डन बाय टू यर्न्स, दिस प्रोसेस डन बाय वन यर्न, क्लियर। दो बोथ आर
डन बाय हैंड एंड आल्सो अ मशीन। दोनों डन जो होते हैं वो हाथ से भी होते हैं और मशीन से भी होते हैं। क्लियर? नेक्स्ट, weaving and knitting are used for making different kind of fabrics. These fabric are used for variety of clothing item. weaving और knitting को use करके हम different different kind के fabric को make कर सकते हैं। for example साड़ी, क्लियर है, स्वेटर, ट्राउजर, शर्ट, गहनी बैग्स, दरी, सो मच थिंग्स आर अवेलेबल। आप अपने आसपास में जो भी क्लोथ का आइटम देखते हैं वो सब हम या तो विविंग के थ्रू बना होता है या निटिंग के थ्रू। तो दो प्रोसेस हैं यर्न से क्या बनाने के, फैब्रिक बनाने के। इट्स क्लियर? ओके। नेक्स्ट पॉइंट इज हिस्ट्री ऑफ क्लोथिंग मटेरियल। क्लोथिंग मटेरियल की हिस्ट्री क्या है? फर्स्ट हम ओवरऑल इसका इन शॉर्ट समरी समझते हैं, फिर हम इसको वन बाय वन लाइन टू लाइन रीड करेंगे। क्लियर? इन प्रीवियस टाइम every people used bark and big leaves of tree, of animals and fur to cover themselves। ये अर्ली पीपल में क्या हो रहा है कि वो क्या कर रहे हैं, अपने क्लोथ मटेरियल को या अपने आप को कवर करने के लिए क्या यूज कर रहे हैं, बार्क यूज कर रहे हैं। व्हाट इज बार्क? जो हमारे ट्री के स्टेम वाले हिस्से में जो कवरिंग होती है डार्क ब्राउन कलर की, उसको हम क्या बोलते हैं, बार्क। या बिग लेव्स को, या एनिमल्स की जो स्किन है या फर है उनको अपने आप को कवर करने में यूज करते थे। देन पीपल्स स्टार्टेड एग्रीकल्चर। पीपल्स ने क्या स्टार्ट किया, एग्रीकल्चर स्टार्ट किया एंड दे लर्न टू वीव। और उन्होंने स्टार्ट किया कि कैसे इनको वीव करके ग्रासेस टू फॉर्म अ मैट एंड बास्केट। उन्होंने जब एग्रीकल्चर को किया तो उनके पास कुछ ट्विंग्स आई, कुछ ग्रास आई, तो उन्होंने क्या किया, एक इनको ही आपस में एक दूसरे के ऊपर वीव करके यानी फोल्ड करके मैट्स बनाने स्टार्ट की, बास्केट बनाने स्टार्ट की। क्लियर है? तो अर्लियर इंडियंस इन गैंगेटिक प्लेन के आसपास में इन पीपल्स ने क्या किया, कॉटन फैब्रिक को ग्रो करना स्टार्ट कर दिया। क्लियर? इन इजिप्ट एंशिएंट पीपल ग्रो कॉटन एज वेल एज फ्लैक्स। इजिप्ट में कुछ पीपल जो थे नील के पास में, उन्होंने फैब्रिक्स को स्टार्ट किया कॉटन के साथ साथ में, किसको, फ्लैक्स को भी स्टार्ट कर दिया। ठीक है, ग्रो करना स्टार्ट कर दिया एज अ फैब्रिक। After that, when they stitching do not know, these people do not know how they stitch their clothes, only wrap the fabric around। वो उस fabric को क्या करते थे, अपने around में wrap कर लेते थे। Clear? After after some time the invention हुआ किसका, needle का invention हुआ। After the needle discovered, then they wear cloth after stitching। वो क्या करने लग गए, स्टिचिंग के बाद में कपड़ों को पहनने लगे। फर्स्ट क्या कराने लग गए, उसको स्टिच कराने लग गए। आई थिंक जनरल चीज समझ में आई होगी आपको ना। हैव यू एवर वंडर्ड दैट व्हाट मटेरियल यूज एंशिएंट टाइम? आप सोच रहे होंगे कि पहले के लोग क्या यूज करते थे क्लोथ्स में। इट अपीयर देन दोस टाइम्स पीपल यूज बार्क, बिग लीव्स। क्या करते थे, बार्क को, बिग लीव्स को, एनिमल स्किन को, फर को अपने आप को कवर करने के लिए यूज किया करते थे। Clear? They use any bark, big leaves, skin, fur, etc. After people began to settle in agriculture community, धीरे धीरे एग्रीकल्चर कम्युनिटी बनी। उन्होंने वीव करना स्टार्ट किया, किसको, ट्विंग्स और ग्रास के थ्रू, मैट्स को और बास्केट्स को। और एनिमल ट्रीज जो उनके पास थे उनको ट्विस्ट करना स्टार्ट किया, जिससे लंबे थ्रेड्स बनाने स्टार्ट किए। दे आर वूवन इनटू अ फैब्रिक। उनसे धीरे धीरे फैब्रिक्स वूवन करना स्टार्ट किया। अर्ली इंडियंस में कॉटन को ग्रो किया था गंगा रिवर के पास में। उसके साथ में फ्लैक्स भी ग्रो होना स्टार्ट हुआ, लेकिन इजिप्ट में। फ्लैक्स इज आल्सो अ प्लांट फाइबर। फ्लैक्स भी क्या होता है, प्लांट फाइबर होता है, तो फ्लैक्स भी नेचुरल फाइबर है। क्लियर? कॉटन एज वेल एज फ्लैक्स आर कल्टिवेटेड नियर द रिवर नील एंड दे वर यूज्ड फॉर मेकिंग फैब्रिक्स। और इनको यूज करने लग गए कहाँ पर, फैब्रिक्स बनाने में। In those days, stitching was not known. People simply wrapped the fabric around different parts of our body. तो क्या हुआ, स्टार्टिंग के डेज में उनको स्टिचिंग का पता नहीं था। They don't know how to they stitch their clothes. So they only wrap their fabrics and different parts of their body. वो सिर्फ wrap करते थे उन fabrics को अपने different body parts को कवर करने के लिए। फिर आफ्टर कुछ टाइम में इन्वेंशन हुआ नीडल का। उसके बाद में उन्होंने क्या किया, स्टिचिंग करना स्टार्ट किया।
आफ्टर स्टिचिंग इन्वेंशन हुआ तो ये जनरल अमेजिंग दैट इवन बॉडी साड़ी, धोती, लुंगी, टर्बन इज अनस्टिच पीस ऑफ फैब्रिक। उन्होंने अनस्टिच पीस ऑफ फैब्रिक में भी काफी चीजें फैब्रिक बना लिया, तो धोती, लुंगी इनको अनस्टिच फैब्रिक है, उसको वो ऐसे भी यूज कर सकते हैं ना। जस्ट एज देयर इज लार्ज वेराइटी इन द फूड रिटर्न, हम देखते हैं कि एक बहुत बड़ी वेराइटी हमको देखने को मिली थी खाने में। हमने प्रीवियस चैप्टर में रीड किया था कि भी साउथ में अलग ईट करते हैं, नॉर्थ में अलग चीजें करते हैं, सेम इसी तरीके से on the same way a large variety exists also in fabrics and clothing item। एक large variety है किसकी, फैब्रिक्स की, क्लोथिंग आइटम्स को बनाने की। अब साउथ में अलग टाइप के क्लोथ्स पहनते हैं, राजस्थान में अलग टाइप के क्लोथ्स पहनते हैं, एंड पंजाब में अलग टाइप के। तो हमारी कंट्री के अंदर अलग अलग स्टेट्स में डिफरेंट टाइप के क्लोथ्स पहने जाते हैं, तो एक लार्ज वैरायटी क्लोथ्स आइटम की प्रेजेंट होती है। तो इन दिस होल चैप्टर वी लर्न व्हाट इज कॉल्ड कॉटन रोल। कॉटन रोल हमारे पास में एज अ फूड मिला हमें कॉटन प्लांट से। कॉटन रोल को आफ्टर गेनिंग व्हेन वी कॉटन रोल से हम सीड को कॉम करके सेपरेट करते हैं, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड गेनिंग। गेनिंग के थ्रू हमने कॉटन रोल को किसमें कन्वर्ट कर दिया, फाइबर में कन्वर्ट कर दिया। क्लियर। फाइबर से अब हमने क्या किया, स्पिनिंग किया। स्पिनिंग में हमने किया कि हमने उस फाइबर को पकड़ा, ठीक है, और उसको पुल करके ट्विस्ट करना स्टार्ट कर दिया, है ना, होल्ड किया। फर्स्ट कौन से में, थंब और फोर फिंगर के बिटवीन में हमने उसको क्या किया, होल्ड किया, स्लोली पुल किया एंड ट्विस्ट किया। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड स्पिनिंग, जिससे क्या हुआ, फाइबर कन्वर्ट हो गया किसके अंदर, yarn के अंदर। क्लियर। yarn आफ्टर yarn converted into a fabric is a two process. First is knitting, second is weaving. In knitting, we require a two yarn. In knitting, we require a two yarn. One is horizontal arranged and second one is vertically arranged. Clear? But weaving, सॉरी knitting में only one yarn is और knitting में क्या करते हैं, हम एक ही थ्रेड यूज करते हैं और उसको क्या करते हैं, एक नॉट, सिंपल नॉट के जैसे बनाकर पूरा फैब्रिक प्रिपेयर कर लेते हैं। क्लियर। इन weaving में हमें कितने स्ट्रिप्स की रिक्वायरमेंट हो, कितने yarn की रिक्वायरमेंट हो गई, टू, one yarn arrange horizontally and second one is vertically or make a fabric। I think all chapter is clear।